بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Dear student, welcome back to the online teaching platform of Oriental Public School Mardan. Today I'm going to record my fifth lecture for class 4th and subject is science. Class 4th, subject science and lecture number 5. Our today's topic is skeletal system. Today you will learn about your own skeleton. Today you will learn what is skeleton, what is the function of skeleton, what is the composition of skeleton. All these things, inshallah, you will learn about your own skeletons. Before proceeding to my new topic, I would like to revise the old topics which you have studied in the previous 4 lectures. If you remember, our first topic was about cell. What is cell? We can define cell as the basic structural and functional unit of all living organisms, or in other words, we can say all living organisms are made up of cells. All living organisms are made up of cells, right? Then next topic was tissue. Our next topic was tissue. What is tissue? What is tissue? You have also learned tissue. Tissue means a group of cells which are similar in structure and functions. What is tissue? Tissue means a group of cells which are similar in structure and functions. Right? What is cell? Cell is a basic structural and functional unit of all living organisms, or all living organisms are made up of cells. Then cells combine, they form a group. That group of cells are called tissues. That group of cells is called tissues. Then tissues combine, they form organ. Tissues combine, they form organ. What is organ? Organ is basically formed from the combinations of different kinds of tissues. When different kinds of tissues combine, they form an organ. Right? What are the examples of organ? Heart in our body is an example of organ. Brain is an example of organ. Stomach is an example of organ. Lungs is an example of organ, right? There are a lot of organs in our bodies. How these organs are formed? These organs are formed from the combinations of different kinds of tissues, right? And how tissues are formed? Tissues are formed from the combinations of cells. Okay? Cells combine, form tissues. Tissues combine, form organs. And organs combine, form organ system. Organs combine, form organ system. What is organ system? Organ system is the combinations of different organs which perform different kinds of functions in our body. Our body is consist of different kinds of organ systems. These organ systems combinedly working together, they form a whole living organism or a whole living body. Right? What is organ system? Organ system is the combination of organs. Organ system is the combination of organs which perform different functions in our body. For example, digestive system. Digestive system is an example of organ systems. In digestive systems, we have different kinds of organs like esophagus, stomach, intestines, pancreas, livers. These are the different kinds of organs. They combine together
they form what? Digestive systems. And what is the functions of digestive system in our body? The function of digestive system in our body to digest food. जो खुराक आप खाते हैं उस खुराक को डाइजेस्ट करना डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है, ठीक है। इसी तरह और बहुत सारे सिस्टम आपके बॉडी के अंदर है विच परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस, राइट। ऑर्गन सिस्टम का एक एग्जाम्पल आज आप पढ़ेंगे। ऑर्गन सिस्टम का एक एग्जाम्पल आज आप पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम्स। स्केलेटल systems. What is skeletal system? Skeletal system means a bony framework which is present inside your body. आपके बॉडी के अंदर हड्डियों से बना हुआ एक ढांचा मौजूद है, उसको कहा जाता है skeletal system. What is skeletal system? Skeletal system means a bony framework which is present inside our body. हमारे बॉडी के अंदर हड्डियों का एक ढांचा मौजूद है, उसको कहा जाता है skeletal system, right? What is skeletal system? All the bones together make up the skeleton. हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के बहुत सारे बोन्स मौजूद होते हैं। आपको पता है एक एडल्ट बॉडी के अंदर कितने बोन्स मौजूद होते हैं? Do you remember how many bones are present in a body of an adult organisms or human being? The answer is 206. मेरे बॉडी के अंदर 206 मुख्तलिफ किस्म की हड्डियाँ मौजूद हैं। ये 206 किस्म की मुख्तलिफ हड्डियाँ कंबाइन होती हैं एक दूसरे के साथ और इससे बनता है skeletal systems or skeleton, ठीक है जी। What is skeletal system? The answer is a bony framework present inside our body is called skeletal system or skeleton, right? Now what is the function of skeleton? Why skeleton is present in our body? हमारे बॉडी के अंदर skeleton को क्यों बनाया गया है, उसका फंक्शन क्या है? अगर बॉडी के अंदर स्केलेटन ना होता या स्केलेटल सिस्टम ना होता तो क्या होता? ठीक है जी। जस्ट इमेजिन फॉर अ व्हाइल इफ यू डोंट हैव स्केलेटल सिस्टम इन योर बॉडी, व्हाट विल हैपन? अगर आपके बॉडी से तमाम हड्डियों को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो बहुत आसान इसका जवाब है। बॉडी से अगर हम इन हड्डियों को निकाल दें तो हमारी बॉडी गोश्त का एक टुकड़ा रह जाएगा। फिर हम ये जितने भी फंक्शंस करते हैं ये तमाम फंक्शंस करना फिर हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है जी। अब स्केलेटन क्या क्या फंक्शंस करता है वन बाय वन हम पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फंक्शंस ऑफ स्केलेटन, यानी आपके बॉडी के अंदर जो बॉनी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जो बॉनी फ्रेमवर्क मौजूद हैं, वो क्या काम कर रहा है, ठीक है। इसका फंक्शन आपने सीखना है। पहला फंक्शन है गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ मौजूद है। स्ट्रेंथ कैसे मौजूद है? आप अपने बॉडी के थ्रू मुख्तलिफ किस्म के वज़न उठा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये डस्टर पड़ा हुआ है, ये डस्टर मैं उठा सकता हूँ, जितनी हाइट तक मैं ले जाना चाहता हूँ मैं इसको उठा सकता हूँ। ये मैं कैसे उठा रहा हूँ, या इससे बहुत सारी वज़नी चीज़ें मैं उठा सकता हूँ। यहाँ पे चेयर पड़ा हुआ है, मैं अगर इस चेयर को अपने हाथ में उठा लूँ, ये मार कर मैं अपने हाथ में उठा रहा हूँ। इस तरह आप बहुत सारी वज़नी चीज़ें उठा सकते हैं। ये वज़नी चीज़ें आप कैसे उठाते हैं? तो इसका जवाब है बिकॉज ऑफ योर स्केलेटन। आपके स्केलेटल के साथ मसल्स अटैच होते हैं और उसी मसल्स के थ्रू आप में फोर्स मौजूद है, आप में ताकत मौजूद है। उस ताकत की मदद से आप मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो बोन्स आपके बॉडी में स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करती है, आपको स्ट्रेंथ देती है, आपको ताकत देती है, जिसकी मदद से आप मुख्तलिफ़ फंक्शंस कर रहे हैं। इसके अलावा ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है।
किस तरह सपोर्ट? फॉर एग्जांपल मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल आपके सामने खड़ा हूँ। किस चीज़ की वजह से खड़ा हूँ? इसका जवाब है अपने स्केलेटन की वजह से मैं बिल्कुल सीधे खड़ा हूँ। अगर मेरे बॉडी के अंदर स्केलेटन ना होता तो मेरा इस तरह खड़ा होना कभी भी पॉसिबल ना होता। आपके बॉडी के अंदर या मेरे बॉडी के अंदर यहाँ पे बैक साइड पे, इधर बैक साइड पे एक बोन मौजूद है, उसको कहा जाता है बैक बोन। उसको क्या कहते हैं? बैक बोन, या उसको कहा जाता है वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम इज कंसिस्ट ऑफ बोन्स कॉल्ड स्पाइन्स। ये जो बैक बोन आपका है, ये किस चीज़ से बनता है? ये एक ख़ास किस्म के बोन से बनता है, उनको स्पाइन्स कहा जाता है। और इन्हीं स्पाइन्स की वजह से मैं बिल्कुल यहाँ पे सीधा खड़ा हूँ। ठीक है, तो मुझे अपने स्केलेटन की वजह से सपोर्ट मिल रहा है। मैं मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस करता हूँ, बैठ सकता हूँ, खड़ा हो सकता हूँ। ये तमाम सपोर्ट मुझे कहाँ से मिल रहा है? स्केलेटल सिस्टम की वजह से मिल रहा है। ठीक है, तो आपके स्केलेटन का पहला फंक्शन ये हुआ, इट गिव्स यू स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। ठीक है जी। दूसरा फंक्शन गिव्स शेप। स्केलेटन हमें शेप देता है। शेप आप देखें, ह्यूमन बॉडी का अलग सा शेप है। इस तरह आप बर्ड्स का देख लें, उनका शेप अलग है। आप स्नेक का देख लें, शेप अलग है। इसी तरह आप आपके अपने घर में गोट मौजूद है, कैट मौजूद हैं, डॉग मौजूद हैं। इन तमाम एनिमल का एक स्पेसिफिक शेप है। इन तमाम ऑर्गेनिज्म को ये शेप कौन दे रहा है? उनका स्केलेटल सिस्टम दे रहा है। बॉडी के अंदर जो हड्डियाँ मौजूद हैं, उन हड्डियों की वजह से एक स्पेसिफिक शेप ऑर्गेनिजम्स का बनता है। ठीक है जी। इसी तरह से मेरे चेहरे का शेप आपके चेहरे के शेप से अलग है। ठीक है, मेरे चेहरे का शेप आपके चेहरे के शेप से अलग है। इसी तरह से बहुत सारे लोग हम देखते हैं, हमारे चेहरे एक दूसरे से अलग हैं। ये अलग जो डिफरेंसेस पैदा होती हैं, इसमें भी स्केलेटन का अहम रोल मौजूद है। चेहरे के नीचे हड्डियाँ मौजूद हैं, उन हड्डियों की शेप में तब्दीली आती है, जिससे ऑर्गेनिजम्स की शेप में तब्दीली आ सकती है। ठीक है जी। तो बॉडी के हर एक हिस्से को आप देखते हैं, उसका एक स्पेसिफिक शेप है। ये शेप कहाँ से मिलता है? ये शेप इन बोन्स की वजह से मिलता है जो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम का दूसरा फंक्शन होगा, इट गिव्स यू शेप, राइट। तीसरा, प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन्स। हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स मौजूद हैं। कुछ ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल आई आपका इंतहाई नाजुक एक ऑर्गन है। इसी तरह ब्रेन दूसरा नाजुक ऑर्गन है। यहाँ पे हमारे हार्ट जो है वो हमारे यहाँ पे थोरैक्स के अंदर हार्ट मौजूद हैं और लंग्स मौजूद हैं, लिवर मौजूद हैं। ये तमाम सारे क्या हैं? इंतहाई डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, बहुत ही नाजुक ऑर्गन्स हैं। इन नाजुक ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? स्केलेटल सिस्टम कर रहा है। ब्रेन, आपका ब्रेन आपके स्कल में मौजूद है। और कहाँ पे मौजूद हैं? एक स्ट्रॉन्ग बोनी बॉक्स के अंदर मौजूद हैं। बोन्स का बना हुआ एक बॉक्स है, उसमें प्रोटेक्टेड है। ठीक है, इंतहाई सख्त हड्डियों का बना हुआ एक बॉक्स है, दैट इज़ कॉल्ड क्रेनियम। वहाँ पे ब्रेन को रखा गया है। इसी तरह से आपके बैकबोन के अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है। स्पाइनल कॉर्ड आपके बॉडी का एक अहम कंपोनेंट है, एक अहम ऑर्गन है, राइट। दिस इज़ द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन। वो कहाँ पे मौजूद हैं? यहाँ बैकबोन के अंदर मौजूद होता है, इधर अंदर मौजूद है, बोन्स के अंदर मौजूद है, न्यूरल कैनाल्स के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह चेस्ट के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, लंग्स हैं, हार्ट है। तो स्केलेटल सिस्टम आपके बॉडी में मौजूद मुख्तलिफ किस्म के डेलिकेट ऑर्गन्स की प्रोटेक्शंस कर रहा है। ठीक है जी, ओके। और लास्ट वन है हेल्प्स इन मूवमेंट। स्केलेटन हेल्प्स इन मूवमेंट। मैं मूव कर रहा हूँ, लिकाई कर रहा हूँ, अपने हाथ को हिला रहा हूँ, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हूँ। दिस मूवमेंट इज़ बिकॉज ऑफ माई स्केलेटल सिस्टम। दिस मूवमेंट इज़ बिकॉज ऑफ माई स्केलेटल सिस्टम। अगर मेरे बॉडी के अंदर बोनी स्ट्रक्चर्स
ना होते, ये बोन्स ना होते, तो फिर मेरे लिए मूव करना इम्पॉसिबल होता। ठीक है जी, मैं फिर से बता देता हूँ, इधर देख लें। स्केलेटल सिस्टम, a bony framework present inside our body is called as skeletal systems. What is skeletal system is made up of? The skeleton is made up of bones, कि बॉडी के अंदर हड्डियों से बना होता है। It performs different kinds of functions. The first function is it gives strength and shape. It gives shape, protect delicate organs, helps in movements. ठीक है जी। इसके साथ स्केलेटल सिस्टम का हाफ पोर्शन आप लोगों ने पढ़ लिया है। हाफ जो पोर्शन है दैट इज कंपोजिशन ऑफ स्केलेटन, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है जी। इस वीडियो के हवाले से मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। यू नीड टू राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चन। योर क्वेश्चन इज व्हाट इज स्केलेटन? व्हाट इज स्केलेटन? Write functions of skeleton. You have to write the answer of this question and then you will share that answer with us through WhatsApp groups. Right? This is the end of the lecture. Inshallah, see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.